Hi guys, welcome to the next video in this daily error day practice series. First pause this video, try this set yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now this is a very lengthy set and a little difficult set. Right, let's start reading this particular set. This is a very interesting set also. You could learn a lot of things from this particular set. Maybe you would really say in this particular set that you would not take up this in an exam or whatever you want to say, but this is a good set from a learning point of view because there are multiple layers to this, and even if one layer is asked in an exam, right, a set can be made out of one layer from this particular set that can be tackled using the logic we'll be explaining this particular set. So this is a set from a learning point of view. Maybe as a whole it becomes difficult because there are a lot of things to read. There has to be a lot of understanding in this. Let's see how this goes. We'll try to keep this as easy as we can. Let's start reading this particular set. So, applicants for the doctoral programs of Ambi Institutes of Engineering, AIE, and Bambi Institute of Engineering, fancy names, BIE, have to appear for a common entrance test, CET. The test has three sections: physics, chemistry, and mathematics, PCM. Among those appearing for CET, those at or above the 80th percentile in at least two sections and at or above the 90th percentile overall are selected for advanced entrance test AET conducted by AI. AET used by AI for final selection. Now आधे लोग तो यहीं पे छोड़ चुके होंगे because this turns very confusing कि किस चीज का डेटा आपको दिया हुआ है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, what is important here, CET important है या AET important है या whatever, what is important here. So देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. बेसिकली ना दिस इज लाइक योर कैट पेपर. जैसे आपका कैट का पेपर होता है, कैसे होता है, कैट का एग्जाम हो गया, ठीक है, 3 सेक्शंस हैं, ओवरऑल है, इनका कुछ आपका स्कोरिंग वोरिंग हो गया कि सेक्शनल में इतना परसेंटाइल से ऊपर है कुछ लोग, ओवरऑल में कुछ लोग का ऊपर है, कुछ लोग का ओवरऑल ऊपर है, सेक्शन से नीचे है, या मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है उसमें. लेट्स से कैट का पेपर हो गया विद दोस कंडीशंस. नाउ यहां पे जैसे दो कॉलेजेस के नाम आपको दिए होंगे, राइट, एक तो ये अम्बी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग है एंड बम्बी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग. तो ये क्या कर रहे हैं ना, ये अपना एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया लगा रहे हैं. सीईटी तो आपने देना ही है, राइट, सीईटी आपने दिया तो उसके बेसिस पे ये दो कॉलेज अपने अपने शॉर्टलिस्टिंग के लिए क्राइटेरियाज लगा रहे हैं. तो जैसे सीईटी के बाद ये जो पहला कॉलेज था दैट इज अम्बी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग AIE, उसने क्या क्राइटेरिया लगाया है, उसने क्राइटेरिया लगाया अमंग दोज अपेयरिंग फॉर सीईटी, उनमें से वो देख रहा है दोज एट और अबव द 80th percentile इन एटलीस्ट 2 sections. तो फॉर एग्जांपल इफ आई से कि एक मैं वेन डायग्राम बनाऊं दिस PCM का, ठीक है, तो क्या बोलता है, दोज एट और अबव द 80th percentile इन एटलीस्ट 2 sections होना चाहिए, राइट. तो मतलब PCM का एटलीस्ट 2 sections मतलब दिस एंड ये सेंट्रल वाला वैल्यू ऑल 3 वाला वो सब इंक्लूडेड है. इनका एक तो इनमें होना चाहिए एंड एट और अबव द 90th percentile ओवरऑल, और ओवरऑल भी आपका 90 percentile से ऊपर होना चाहिए. ओनली दोज पीपल विल बी सेलेक्टेड फॉर दिस AET जो कि वो कॉलेज करा रहा है, दैट इज अम्बी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, राइट. तो ऑलरेडी सीईटी के डेटा से वो कुछ स्पेसिफिक लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं. सो मे बी वी डोंट नीड टू मेक अ सेपरेट वेन डायग्राम फॉर दिस AET. उस AET का ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. आपका मेन जो CET का डेटा दिया होगा इन दिस पर्टिकुलर सेकंड पैराग्राफ, CET का कुछ आपका स्पेसिफिक डेटा आपको ड्रॉ करना है, उससे स्पेसिफिक वैल्यूज बस आपको रीड करनी पड़ेंगी हु आर एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर दिस AET test that is conducted by AIE, Ambi Institute of Engineering. I hope this is clear. Now let's move on to the second paragraph. Now Venn diagram किसका बनना है, that is very crucial to the set and that is given in this particular scenario, right. ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे ना, मतलब किसी भी सेक्शन में 80 percentile से ऊपर नीचे, उसमें भी आपका ओवरऑल 90 percentile से ऊपर या नीचे, ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है. क्या सब कुछ बनाना है? The answer is no. And that is cleared by this particular second paragraph. Let's read this very carefully. For the 200 candidates who are at or above the 90th percentile overall based on CET, right? तो किसका डेटा दे रहा है? For the 200 candidates who are at or above the 90th percentile overall on CET. तो बेसिकली हमारे पास ना जो 200 का डेटा है that will be putting in the Venn diagram itself. वो 200 का डेटा किसके लिए है? For the 90 percentile plus students.
उसके नीचे वालों का डेटा ही नहीं है अपने पास, अपने को मतलब ही नहीं है, बिकॉज देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज. क्वेश्चन किसी एक के करस्पॉन्डिंग बना हुआ है, तो डेटा इज फॉर दोज पीपल, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव एट और अबव द 90th percentile ओवरऑल इन दिस पर्टिकुलर CET पेपर, राइट? दैट इज very important. Now, for those people, the following data are known about their performance in CET. Only for those people we have information. For those 200 people who are at or above the 90th percentile. Now, no one is below the 80th percentile in all three sections. Now, अब देखो, इसको ध्यान से समझना. ओवरऑल आपका 90 परसेंटाइल से ऊपर तो है, राइट? इसमें आपका जो डेटा हम ड्रॉ करेंगे वो किसके लिए ड्रॉ करेंगे? PCM में ग्रेटर देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल, ग्रेटर इक्वल टू 80 परसेंटाइल, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल. फॉर दोज पीपल विल बी ड्रॉइंग. नाउ ये स्टेटमेंट जो बोलता है वो क्या बोलता है? नो वन इज बिलो द 80th परसेंटाइल इन ऑल थ्री सेक्शंस. इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे अगर आप इस सर्कल को देखो, ये सर्कल कौन से लोग को रिप्रेजेंट करेगा? जिनका ओवरऑल 90 परसेंटाइल से तो ऊपर है, क्योंकि डेटा ही उन्हीं का बना रहा है, और इनका P में भी, फिजिक्स में भी ग्रेटर देन या इक्वल टू 80 परसेंटाइल है. तो इस सर्कल के बाहर जो आपके तीन वैल्यूज ये होंगे, दिस दिस एंड दिस, ये वो लोग होंगे जिनका लेस देन 80 परसेंटाइल होगा फिजिक्स में, लेकिन ओवरऑल आपका 90 परसेंटाइल से ऊपर होगा, राइट? सो वी आर कंसर्न अबाउट दीज थ्री वैल्यूज. तो फिजिक्स से बाहर जो होगा वो आपका ग्रेटर देन लेस देन 80 परसेंटाइल इन फिजिक्स होगा. केमिस्ट्री वाले सर्कल से जो बाहर होगा, दिस दिस दिस, वो लेस देन 80 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री होगा. एंड सिमिलरली मैथमेटिक्स वाले सर्कल से जो बाहर होगा, दिस दिस दिस, वो आपका लेस देन 80 परसेंटाइल इन मैथमेटिक्स होगा. नाउ एक पॉइंट आप ये पूछ सकते हो, दैट इज अ वैलिड डाउट, बट उसको क्लियर कर लेते हैं. आप ये बोल सकते हो फिजिक्स में लेस देन 80 परसेंटाइल तो बाहर भी होना चाहिए, ऐसे भी तो लोग होंगे. द पॉइंट इज यहां पे जो 200 का वेन डायग्राम बना रहे हैं, इस 200 में सबका आपका जो वो लोग हैं वो बेसिकली आपका 90 परसेंटाइल से ऊपर वाले लोग हैं. तो ये जो बाहर होंगे ना, ये बाहर जो लोग होंगे जिनका फिजिक्स में लेस देन 80 परसेंटाइल होगा, उनका ओवरऑल भी तो फिर 90 परसेंटाइल से नीचे हो गया, क्योंकि इस पूरे वेन डायग्राम से बाहर हो गए, राइट? बिकॉज इस ये वेन डायग्राम बना है ग्रेटर देन इक्वल टू 90 परसेंटाइल ओवरऑल. उसमें फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का कैटेगराइजेशन है बेस्ड ऑन कि वो 80 के अंदर है या फिर 80 से नीचे है, राइट? तो बाहर नहीं रखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ डेटा 200 का बनाना है, एंड दोज आर स्पेसिफिक ऑल द पीपल हु हैव ग्रेटर देन इक्वल टू 90 परसेंटाइल. आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ, राइट? तो आउटसाइड फिजिक्स विल बी लेस देन 80, हम ध्यान रखेंगे विद इन द फिगर इटसेल्फ, right? And moving on to the second point, 150 are at or above the 80th percentile, exactly two sections. तो exactly two का डेटा आपको क्लियर कर दिया हुआ है. 150. The number of candidates at or above the 80th percentile only in P, at or above the 80th percentile only in P would be this value. Then is the same as the number of candidates at or above the 80th percentile in M and C as well. तो P, C, M, only वाला पार्ट सब कुछ क्या है? सेम है. These all three values have to be same. And the number of candidates below the 80th percentile in P. तो below the 80th percentile in P हमने ये तो समझा था, this and this. The number of candidates below 80th percentile in C, that is C को छोड़ के, that this. And finally, number of candidates below the 80th percentile in M को छोड़ के this and this. ये तीनों का जो एडिशन होगा, तो उनका जो रेशियो निकालेंगे हम बेसिकली वो 4:2:1 है. We'll take this up through variables. अभी हम समझ रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है. तो दिस इज द डेटा. इस वाले सेकेंड वाले इंफॉर्मेशन से पूरा वेन डायग्राम बनेगा. विल रीड दिस अगेन व्हेन वी स्टार्ट मेकिंग दिस वेन डायग्राम. एंड द फाइनल पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, दिस सेकंड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, ये BIE का क्राइटेरिया दिया है. दो कॉलेज थे ना, AI का क्राइटेरिया तो आपने सेटिस्फाई कर लिया था, अब ये BIE का सेटिस्फाई करना है डेटा. तो BIE का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? इट इज अ लिटिल डिफरेंट. इफ एनी कैंडिडेट इज अपेयरिंग इन द AET by AI, तो if there are candidates who are appearing for this AET test, now who is appearing for AET test, आपने समझा था वो क्या होना चाहिए था? आपका इस फिगर के अंदर आना ही चाहिए, बट एटलीस्ट 2 सेक्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल होना चाहिए. सो these 4 people, these 4 numbers, इसमें जो भी लोग आएंगे ये AET के लिए एप्लीकेबल है. तो इसमें क्या बोला था? BIE uses a different process for selection. If any candidate is appearing in the AET by AI, BIE considers their AET score for final selection. तो वो उसका स्कोर एक्सेप्ट करेंगे प्रोवाइडेड, दिस इज अ बिग प्रोवाइडेड द कैंडिडेट इज एट और अबव द 80th परसेंटाइल इन P. तो 80 वाला जो भी लोग है ना, उनको वो एक्सेप्ट करेंगे कि भाई तुम 80 लिख रहे हो, perfectly fine with us, but then it comes with a caveat. This comes with a condition to us that
आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल होना चाहिए पी में। तो आउट ऑफ दीज 4 पीपल से वो उन्हीं लोगों को डायरेक्टली ऐसा बोलेंगे कि भाई 80 वाला पार्ट अपने को चलेगा जिनका 80 परसेंटाइल एंड अबव होना चाहिए पी में। तो दीज 3 पीपल ओनली विल बी एप्लीकेबल। ये वाला इसका 80 परसेंटाइल से नीचे है पी में, इसको ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे बीटी वाले टेस्ट में, राइट। बीआई बेसिकली जो कॉलेज है, राइट। तो सो मेनी नेम्स, आई होप दिस इज क्लियर। एंड लास्ट पार्ट, एनी अदर कैंडिडेट। नाउ बाकी लोगों का क्या होगा, इफ समवन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एआई, तो क्या वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, दे हैव अ कंडीशन टू दैट, अच्छे लोग हैं। एनी अदर कैंडिडेट एट और अबव द 80th परसेंटाइल इन पी इन सीटी, राइट। एनी अदर कैंडिडेट जिसका 80 परसेंटाइल एंड अबव पी में है, ओवरऑल से कोई मतलब नहीं है, 80 परसेंटाइल एंड अबव आपका बस पी में होना चाहिए, but who is not eligible for the AAT is required to appear in a separate test to be conducted by BIE for being considered for final selection। देखो इसको मैं ध्यान से समझाता हूं, इसमें क्या है ना, any other candidate who has greater than equal to 80 परसेंटाइल इन पी, पहले ये कौन लोग होंगे? एक तो इसी सर्कल में आपको दिख रहा है, लेकिन इस सर्कल से बाहर भी लोग हो सकते हैं, बिकॉज यहां पे ये जो सर्कल है, यहां पे बेशक आपका पी में 80 परसेंटाइल एंड अबव इन पी है, बट ये वो भी लोग हैं जिनका ओवरऑल भी 90 परसेंटाइल एंड अबव है। तो ऐसे भी तो लोग होंगे जिनका पी में 80 परसेंटाइल से ऊपर होगा, बट इनका ओवरऑल 90 से नीचे रह गया। तो दीज आर नॉट देयर इन दिस पर्टिकुलर फिगर, वो इस फिगर का पार्ट नहीं है, ऐसे बाहर लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं की बात करता है, तो वो सारे लोग को देखेगा जितने भी लोगों ने सीटी लिखा होगा। ये तो एक स्पेसिफिक डेटा है, ये तो सिर्फ 200 लोगों का डेटा है जिनका 90 परसेंटाइल से ओवरऑल है। ऐसे बहुत सारे लोग और भी होंगे जिनका 90 से नीचे होगा, लेकिन ये पी में जो होगा उनका 80 परसेंटाइल एंड अबव होगा। तो ऐसे लोगों की बात कर रहा है। आउट ऑफ ऑल दोज पीपल उनको सेलेक्ट करेंगे सेपरेट टेस्ट के लिए, बट उनको एक्सक्लूड कर देंगे जो एईटी के लिए एप्लीकेबल है। तो एक्चुअली में ये वाले जो 3 होंगे, पी में भी 80 परसेंटाइल से ऊपर है लेकिन एईटी के लिए एप्लीकेबल है, ये जो 3 लोग हैं ये थे एप्लीकेबल बिकॉज इनका एटलीस्ट 2 सेक्शन वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये इनको एक्सक्लूड कर देगा। तो बीटी के लिए कौन कौन एप्लीकेबल होगा? एक तो ये ओनली पी वाला यहां पे, राइट, क्योंकि इसका पी में 80 परसेंटाइल से ऊपर है, बट ये एटलीस्ट 2 वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये एईटी के लिए एप्लीकेबल है। दिस अलोन वाला पार्ट ये सेपरेट टेस्ट देगा, राइट। ऑल्सो बाहर भी कुछ लोग होंगे जो कि ओवरऑल 80 परसेंटाइल से ऊपर होंगे पी में, ओवरऑल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पी में 80 परसेंटाइल से ऊपर होंगे, एंड ऑटोमेटिकली बिकॉज वो इस फिगर के अंदर नहीं है, वो यहां नहीं है, तो वो वैसे भी एईटी के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो देयर आर अदर पीपल एज वेल, right? So this took a lot of time in just explaining this. Let's start making the Venn diagram now. तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है, इस वाले पार्ट से बनना है, बाकी ये सब तो क्राइटेरियाज लगेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे काम आएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ वेन डायग्राम। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पीसीएम बनाते हैं। लेट्स से वी हैव अ 3 सर्कल वेन डायग्राम। इसमें P जाएगा, इसमें C जाएगा, इसमें M जाएगा, राइट, फॉर द 200 कैंडिडेट्स। तो पूरा इस सर्कल के अंदर कितना जाएगा? 200 का डेटा जाएगा, राइट। नो वन इज बिलो द 80 परसेंटाइल, तो पूरा का पूरा 200 इसके अंदर ही है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज डन। 150 आर एट और अबव द 80th परसेंटाइल इन एग्जैक्टली 2 सेक्शंस। तो एग्जैक्टली 2 वाला दिस होता है। लेट्स से मैं इसको x बोलता हूं, इसको मैं y बोलता हूं, इसको मैं z बोलता हूं। तो क्या बोलता है कि x प्लस y प्लस z दिस हैज टू बी 150। एक सेट ऑफ कंडीशन मिल गई आपको। द स्टेटमेंट इज डन। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एट और अबव द 80th परसेंटाइल ओनली इन P, ओनली इन C, ओनली इन M। this they have to be same, right? The same, सब कुछ same है। तो I can represent this by A and A, right? So all these 3 only वाला regions are equal, so we have represented them by A. This statement is also done. And एक ही रीजन बचा है, उसको कुछ मैं वेरिएबल देना प्रेफर करूंगा। लेट्स से दिस इज W, ठीक है। नाउ एक कंडीशन मेरे को तुरंत समझ में आ रही है, जैसे ये 200 जो है, ये 200 में x प्लस वाई प्लस जेड तो आपका 150 हो गया। दैट मीन्स ये जो रिमेनिंग 4 वैल्यूज हैं, ट्रिपल ए और W, दैट इज 3A प्लस दिस W, दिस शुड एड अप टू व्हाट? द रिमेनिंग 50, बिकॉज 200 का टोटल बनना चाहिए, सो दिस शुड एड अप टू 50। Now let's come to this condition. The number of candidates below the 80th percentile in P. तो P वाले सर्कल से बाहर कौन सा? 2A plus Z. तो ये किसका रेशो दे रहा है? 2A plus Z. The second, number of candidates below the 80th percentile in C. C से बाहर 2A plus Y, 2A
प्लस वाई, एंड फाइनली ऑब्वियसली एक जो बच गया होगा वही होगा 2a प्लस जेड वाई है, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, x आ रहा होगा. ठीक है, बिलो 80th परसेंटाइल इन एम, एम के सर्कल से बाहर 2a प्लस एक्स. इन तीनों जो क्वांटिटीज हैं उनका रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 4:2:1. जब आप रेशियो हटाते हो तो कुछ वेरिएबल डालते हो, 4k 2k और k. आई कैन राइट दिस. सो दिस शुड बिकम इक्वल टू समथिंग लाइक अ 4k, this should become equal to something like a 2k and this should become equal to something like a k. अब हमें क्या करना है, देखो आपको सोचना पड़ेगा, हाउ डू आई रिलेट दीज थ्री इक्वेशंस जिसमें से चीजें कम होनी स्टार्ट हो. तो आई नोटिस कि मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड है एक रिलेशन, तो मैं क्या करने में इंटरेस्टेड हूँ, इन तीनों इक्वेशंस को एड अप करने में. तो इफ आई एड ऑल द थ्री इक्वेशंस तो कितना बन जाएगा आपका, ये 6a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बिकम्स 150, तो ये 150 हो गया. और इधर क्या आ गया, 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 7k. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर अस. तो एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है. नाउ इसमें कैसे प्रोसीड करना है, यू विल हैव टू कंसिडर पॉसिबल वैल्यूज. ये वैसे क्वेश्चंस में से है जिसमें आपको पॉसिबल वैल्यूज फिगर आउट करनी पड़ेगी थ्रू दिस इक्वेशन इटसेल्फ. तो यही मैं बोल रहा था, दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन मल्टीपल लेयर्स. तो ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सीक्वेंस चल रहा है जहां पे आप वैल्यूज फिगर आउट करोगे. कंडीशंस वगैरह तो बात की बात है, सिर्फ इतने से भी कोई एक नया सेट बन सकता है. सो यू विल हैव टू बी कंफर्टेबल यूजिंग दीज इक्वेशंस टू फिगर आउट पॉसिबल वैल्यूज, राइट. दैट इज व्हाई आई वांट यू टू लर्न दिस पर्टिकुलर सेट, हाउ दिस सेट इज बीइंग सॉल्व्ड. नाउ क्या करना है, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच लगाना पड़ेगा. जैसे द राइट हैंड साइड इफ यू नोटिस इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 7k है तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए. सो द राइट हैंड, सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज 6a प्लस 150, दैट शुड ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 7. दोनों साइड बैलेंस है, राइट साइड वाला 7 का मल्टीपल है तो लेफ्ट साइड वाला भी तो 7 का मल्टीपल रहेगा. तो you'll have to make this, let's say we have to plug in a certain value of a such that this whole thing becomes a multiple of 7. अब कैसे सोचें, पहले तो मैं इसको छोटा करके सोचना चाहूंगा, थोड़ा एल्जेब्रिक अप्रोच. जैसे 150 में से कहां तक 7 से ऑलरेडी डिविजिबल है, सो 140 डिविजिबल है, उसमें 7 और ऐड कर दोगे तो 147 भी डिविजिबल है. 147 इज ऑलरेडी डिविजिबल बाई 7, इसमें तो कुछ डिविजिबल है नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग. तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें से ना 6a प्लस 6a प्लस यहाँ पे 3 बचेगा बिकॉज 147 इज डिविजिबल, ऑलरेडी डिविजिबल बाई 7. तो 6a प्लस 3 हैज टू बी अ सर्टेन नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 7. तो मैं a की क्या वैल्यूज प्लग इन कर सकता हूँ, लेट्स ट्राई बेसिक हिडन ट्रायल वाला पार्ट. तो a इक्वल टू 1 पे 9 बन जाएगा, नॉट डिविजिबल बाई 7. a इक्वल टू 2 पे 15 बन जाएगा, नॉट डिविजिबल बाई 7. बट व्हेन इट कम्स टू a इक्वल टू 3, तो 3 6 18 प्लस 3 21 एंड दैट इज डिविजिबल बाई 7. तो a की एक वैल्यू मुझे समझ में आई, लेट्स स्टार्ट राइटिंग दिस डाउन. a की वैल्यू मेरे को समझ में आई, इट कैन बी 3. नाउ उसके बाद भी तो वैल्यू आ सकती है, उसके बाद आप बैठ के फिर से हिडन ट्रायल नहीं करोगे. देखो ऐसी इक्वेशन में जब भी आपको एक वैल्यू मिल जाए उसके बाद बस आपको उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, किससे, जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हो वो उतने से ही बढ़ता जाएगा. तो 7 से बढ़ेगा आप डायरेक्टली, तो a इक्वल टू 3 पे मिलेगा आपको वैल्यू, फिर नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यू आपको डायरेक्टली a इक्वल टू 10 पे मिलेगा. नाउ अगली भी वैल्यू मिलेगी दैट इज a इक्वल टू 17 पे. बट पॉइंट इज एक इक्वेशन ये भी तो है, ये खड़ा है ना आपके सामने, इसको रिस्ट्रिक्शन बना के, बैरियर बना के. जैसे 3a प्लस w इक्वल टू 50 है, तो a को मैं क्या 17 रख पाऊंगा, नो. अब इग्नो, बिकॉज w कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज अ नंबर ऑफ पीपल, राइट. नेगेटिव नहीं हो सकता, तो a की वैल्यू 17 तो मैं रख नहीं सकता. दैट मीन्स वी शुड नॉट गो एनी फर्दर. बस यही दो a की पॉसिबल वैल्यूज हैं. अब यहां से a इक्वल जो आपकी वैल्यूज आई, इससे आप w भी निकाल सकते हो, इससे आप k भी निकाल सकते हो. बिकॉज आप k निकाल सकते हो तो इससे आप x y z बना सकते हो. तो अब आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे ना, एक्चुअली दो वेन डायग्राम बनने वाले हैं, दो पॉसिबल यहाँ पे केसेस हैं, नंबर्स. जैसे a इक्वल टू 3 पे आओ, सारे पहले हम नंबर्स बनाते हैं, राइट. a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 3 पे क्या बन जाएगा आपका, पहले हम w निकाल लेते हैं. तो इस केस में w कितना आएगा, 50 माइनस 3a, 50 माइनस 9 दैट इज 41. इस केस में w कितना आएगा आपका, 50 माइनस 30 दैट इज 20, राइट. देन लेट्स फिगर दिस k आउट. तो यहाँ से k कितना बनेगा, तो यहाँ से 6a दैट इज 6 3 18 प्लस 150, तो 168 डिवाइडेड बाई 7 दिस बिकम्स 24, k 24 आ गया. देन यहाँ से k कितना आएगा, a 10 60 210, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, ये आ गया. अच्छा, अब यहाँ से अब हमें x y z निकालना स्टार्ट करूँगा. तो x y z निकालते हैं, यहीं पे निकाल सकते हैं, ठीक है. चलो x y z, तो x देन y देन z. नाउ कितना आएगा यहाँ से, सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, z.
तो 4k मतलब 96 माइनस 6 दैट इज 90, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90. देन 2k मतलब 48 माइनस 6 दैट इज 42. दिस इज 42. नाउ x का वैल्यू सीधा k 24 माइनस 6 दैट इज 18. एक ये वैल्यूज आई. नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी अगेन सेम x y z. तो इसमें क्या बन जाएगा आपका अगेन 4k, यहाँ पे k कितना है 30, तो 4k मतलब 120 माइनस 20 दैट इज 100. z की वैल्यू कितनी आ गई 100. देन 2k 60 माइनस 20 दैट इज 40 y की वैल्यू. एंड फाइनली x की वैल्यू k माइनस 2a दैट इज 20 दैट इज 10. ये हो गए आपके दो वेन डायग्राम के सेट ऑफ वैल्यूज क्रिएट, राइट. तो अब हम क्या बना सकते हैं यहाँ से, बेसिक आपका एक वेन डायग्राम. लेट्स से इस फिगर को हटा दें, तो लेट्स रिमेंबर दिस ऑर्डर. ए लिखा है, एक्स वाई जेड लिखा है, डब्ल्यू लिखा है. फाइन, लेट्स मेक अ वेन डायग्राम. तो दो केसेस बनने हैं, पी सी एम और दूसरा पी सी एम. लेट्स फिल ऑल द वैल्यूज. तो ए आपका यहाँ पे है, तो फर्स्ट केस यहाँ पे है, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 3. सेंट्रल वैल्यू आपकी 41, ये हमने डब्ल्यू लिया था, दिस इज 41. ठीक है. नेक्स्ट के से आपने एक्स वाई जेड निकाला, तो एक्स वाई जेड इन दैट ऑर्डर लिखा था, सो दिस हैज टू बी 18, वाई इज 42 एंड फाइनली दिस इज 90. एक ये वेन डायग्राम बना. दूसरा वाला इसमें ए इक्वल टू 10 10 10 10 10 10. सेंट्रल वैल्यू आपकी W दैट इज 20 एंड फाइनली 10 40 एंड 100. सो दिस इज 10 40 एंड दिस इज 100. आई होप दिस इज क्लियर. ये हो गया आपका वेन डायग्राम कंप्लीट. नाउ वी कैन नाउ मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स. तो केसेस रहेंगे, कंडीशनल प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे. Let's take a look at the first problem. What best can be concluded about the number of candidates sitting for the separate test for BI who were at or above the 90th percentile in CT? तो separate test लिखने का क्या कंडीशन था कि ओवरऑल आपका क्या होना चाहिए, P में 90 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर AET. ठीक. तो वो कौन से लोग थे आपके, दिस 3, बिकॉज ये आपका ओवरऑल 80 परसेंटाइल से ऊपर भी है और ये 80 के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है. 80 के लिए एप्लीकेबल तो ये वाले हो जाएंगे इसमें से, तो ये 3 हो जाएगा एंड इस वाले केस में ये 10 हो जाएगा. एंड हेंस द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम बिकम्स फर्स्ट ऑप्शन 3 और 10. नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एट और अबव द 90th परसेंटाइल ओवरऑल, तो इस फिगर की बात हो रही है, एंड एट और अबव द 80th परसेंटाइल इन ऑल थ्री सेक्शन सेंट्रल वैल्यू इज एक्चुअली मल्टीपल ऑफ 5. तो कौन सा केस कंसिडर करना है, द सेकेंड वाला केस. What is the number of candidates who are at or above the 90th percentile overall and at or above the 18th percentile in both PNM and CET? तो both PNM कितना दिख रहा है, 40 plus 20. इस पर्टिकुलर केस में both PNM is 40 plus 20, that is 60. Right? Pretty straightforward once you get the Venn diagram right. Third, if the number of candidates who are at or above the 90th percentile overall and at or above the 80th percentile in all three sections in CET is actually a multiple of 5, the same case again. ये second वाला case देखना है, ये all three वाला it is a multiple of 5, that is 20. Then how many candidates were shortlisted for the AET for AIE? कितने लोग को शॉर्टलिस्ट करा था जिनका एटलीस्ट क्या था 2 था. तो यही मैंने बोला था, वो जो पूरे पैराग्राफ है ना बेसिकली क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए. मेन वेन डायग्राम का सेकंड वाले से बनता है, बस ये कंडीशंस आपको क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज वंस यू गेट द वेन डायग्राम तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि किसका आंसर निकालना है, क्या निकालना है. सो बस AET के लिए कौन से लोग एप्लीकेबल थे जो इस फिगर के अंदर है और एटलीस्ट 2 वाले रीजन में आते हैं. तो 40 20 100 एंड 10. सो कितना हो जाएगा 170. Right? These people will be applicable for AET. Next, if the number of candidates who are at or above the 90th percentile overall and also at or above the 80th percentile in P in CET is more than 100, तो at or above the 80th percentile in P, तो इसको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा केस बोल रहा है. इस केस में P में देखो तो 40 20 60 प्लस 20 80 तो हुआ, तो ये केस की बात नहीं कर रहा होगा, इसकी बात कर रहा है. और ये देखने में भी आपको 100 से ऊपर जाते हुए दिख रहा है. 40 प्लस 41 इज 83 प्लस 18 ये ऑलरेडी आपका क्रॉस हो गया 100 को. सो वी आर कंसर्न अबाउट दिस केस. अब इसमें क्या करना है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड टू सेट फॉर द सेपरेट टेस्ट फॉर BI. तो सेपरेट टेस्ट का क्या कंडीशन था, तो देखो मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया था पीछे
कि बी के लिए ये जो कंडीशन था, एनी अदर कैंडिडेट at or above the 80th percentile in P in CT but who is not eligible for AT is required to appear for a separate test in for B. तो बेसिकली मेरे को वो सारे लोग चाहिए जिनका P में 80 परसेंटाइल से ऊपर है, राइट, और AET के लिए एप्लीकेबल नहीं है. रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे भी लोग होंगे जिनका जो इस फिगर के अंदर है ही नहीं बट जिनका P में 80 परसेंटाइल से ऊपर है, ऐसे भी लोग होंगे, पूरा फिगर के बाहर ही होगा वो, ऐसा वो भी लोग आपका सेपरेट टेस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे. एंड दैट इज व्हाई वी हैव बीन गिवन विद दिस नंबर दैट इज 400. ऑल टुगेदर देयर आर 400 कैंडिडेट्स दिस ईयर हु आर एट और अबव द 80th परसेंटाइल इन पी. तो मतलब टोटल मिला के पी में 80 परसेंटाइल में 80 परसेंटाइल एंड अबव पी में कितने लोग हैं? 400 लोग हैं. उस 400 में से बस आपको वो लोग हटाने हैं पूरी पिक्चर में से जो कि एईटी के लिए एप्लीकेबल है. तो कौन से लोग एप्लीकेबल है एईटी के लिए? दीज 42 प्लस 41 प्लस 18, क्योंकि इनका पी में 80 परसेंटाइल भी है और आपका सॉरी एईटी के लिए तो कंडीशन ही नहीं है बिकॉज ये जो है ये तीन एटलीस्ट 2 वाले रीजन में बिलोंग करते हैं. तो इन तीन नंबर्स को मेरे को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो 42 प्लस 41 प्लस 18 ये कितना हो जाएगा? 101. सो बेसिकली आई हैव टू सबट्रैक्ट 101, yes, 101 from 400, and these will be the number of people who have to appear for a separate test conducted by BI. Right? A very lengthy problem, but this comes with a lot of learning. I hope this is clear. If you have any doubts, you can just put it in the comments. Thank you.